Hello, students. I hope you all are fit and fine at your home. And today I have come before you to let you know that I'm going to give you my video lecture on active and passive voice. And it's my request to all of you to please be till the end of the video so that you may be able to understand each and every point. This active and passive voice is having two parts. This is your first part, and after this I'll provide you second part of this active and passive voice. So let's start. And it's my humble request to all of you, please like and share the video and subscribe the channel so that you may get the notification of the video whenever I upload on YouTube. Keep enjoying the videos, keep learning, keep serving. Let's start the lecture on active and passive voice. Thank you. Students, we will study about active and passive voice. This is part 1. First of all, we will understand what is the definition of voice. So let's see. In English grammar, the voice of a verb describes the relationship between the action that the verb expresses and the participants identified by its arguments. When the subject is the agent or doer of the action, the verb is in the active voice. डियर स्टूडेंट्स, आप वॉइस स्टडी कर रहे हैं और इस वॉइस में दो चीज़ों का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है. पहली बात वर्ब मीन्स एक्शन एंड सेकंड थिंग इज द डूअर मीन्स द सब्जेक्ट. दोनों का रिलेशनशिप आप यहाँ वॉइस में स्टडी कर पाएंगे. तो लेट्स मूव अहेड. How many types of voice are there? So there are two types of voice, namely active voice and passive voice. Let's see what is active voice. Active voice means that a sentence has a subject that acts upon its verb. It means कि active voice एक ऐसा सेंटेंस है जहाँ पर सब्जेक्ट द्वारा कोई एक्शन किया जाता है. मीन्स सब्जेक्ट को एम्फेसाइज करते हैं और सब्जेक्ट का फोकस उसके एक्शन पर होता है. नाउ नेक्स्ट इज पैसिव वॉइस. पैसिव वॉइस मीन्स दैट अ सब्जेक्ट इज अ रेसिपिएंट ऑफ अ वर्ब्स एक्शन. पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट वर्ब के एक्शन का रेसिपिएंट होता है. मीन्स यहाँ पर हम पैसिव वॉइस में वर्ब को ज़्यादा एम्फेसाइज करते हैं, ऑब्जेक्ट को ज़्यादा एम्फेसाइज करते हैं और सब्जेक्ट सेकेंडरी हो जाता है. लेट्स सी समथिंग मोर अबाउट एक्टिव वॉइस. When the subject of a sentence performs the verb's action, we say that the sentence is in the active voice. कहने का मतलब है कि जब सब्जेक्ट किसी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट एक्शन को परफॉर्म करता है तो हम ये कहते हैं कि जो सेंटेंस है ये एक्टिव वॉइस में है. एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट को एम्फेसाइज करते हैं, उसके वर्क को बताते हैं. सेंटेंसेस इन द एक्टिव वॉइस हैव अ स्ट्रॉन्ग
डायरेक्ट एंड क्लियर टोन। जो एक्टिव वॉइस के सेंटेंसेस होते हैं ये नॉर्मली जैसे हम आप बातचीत करते हैं उस तरह के होते हैं, जहाँ पर सब्जेक्ट को ज़्यादा फोकस करते हैं, उसके एक्शन का रिलेशन सब्जेक्ट के साथ नज़र आता है। एग्जाम्पल्स ऑफ एक्टिव वॉइस: monkeys adore bananas. Second example is the cashier counted the money. Next example of active voice: the dog chased the squirrel. So these are the examples. Now next we are going to see something more about passive voice. A sentence is in the passive voice. On the other hand, when the subject is acted on by the verb, means जब सब्जेक्ट के ऊपर वर्ब के द्वारा कार्य किया जाता है तो ये सेंटेंस आपका पैसिव वॉइस में होता है। द पैसिव वॉइस इज ऑलवेज कंस्ट्रक्टेड विद अ कॉन्जुगेटेड फॉर्म ऑफ टू बी। टू बी के बारे में हम लोग आगे स्टडी करेंगे। द पैसिव वॉइस इज ऑलवेज कंस्ट्रक्टेड विथ conjugated form of to be plus the verbs past participle. I hope you all are knowing what is past participle form of verb. It means third form of verb. Doing this usually generates a preposition as well. That sounds much more complicated than it is. Passive voice is actually quite easy to detect. पैसिव वॉइस को पहचानना आसान है। पैसिव वॉइस की कुछ चीज़ें होती हैं जिसमें हम पाएंगे, एक तो ऑब्जेक्ट के ऊपर ज़्यादा हमारा फोकस रहेगा, दूसरी चीज़ वर्ब के द्वारा हम सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करेंगे। जब हम पैसिव वॉइस की बात करते हैं तो पैसिव वॉइस में टू बी का यूज़ डेफिनेटली होता है, और पैसिव वॉइस चाहे किसी भी टेंस में हो, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ वर्ब मीन्स थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब को यूज़ किया जाता है। ना सेकेंड फॉर्म यूज़ होता है वर्ब का, ना ही फर्स्ट फॉर्म यूज़ होता है। तो इसलिए पैसिव वॉइस को डिटेक्ट करना काफ़ी आसान है। एग्जाम्पल्स अभी जो आपने एक्टिव वॉइस के देखे हैं उसी को पैसिव वॉइस में हम देखेंगे। क्या है एग्जाम्पल? बनानाज आर अडोर्ड बाय मंकीज। नेक्स्ट एग्जाम्पल: द मनी वॉज काउंटेड बाय द कैशियर। द स्क्वायरल वॉज चेज्ड बाय द डॉग। तो ये आपके पैसिव वॉइस हैं। इसी का एक्टिव वॉइस आपने पिछली स्लाइड में देखा है। बनानाज आर अडोर्ड बाय मंकीज। और एक्टिव वॉइस में आपने देखा था मंकीज एडोर बनानाज। तो यहाँ पर आपको टेंस को भी आइडेंटिफाई करना होगा। जब आप प्रॉपर वे में टेंस को आइडेंटिफाई करेंगे तो उसका पैसिव वॉइस और अच्छे ढंग से सही ढंग से बना पाएंगे, जिसके बारे में हम आगे स्टडी करेंगे। नाउ लेट्स सी व्हाट इज़ टू बी। टू बी के अंदर कौन कौन सी चीज़ें आती हैं तो देखते हैं टू बी में क्या है। टू बी में हम 8 हेल्पिंग वर्ब्स को देखेंगे, जिसमें सबसे पहले है इज़, ये प्रेजेंट टेंस में है। वॉज पास्ट टेंस का है। बी ये फ्यूचर टेंस में यूज़ किया जाता है, मीन्स प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर तीनों का कॉम्बिनेशन है ये टू बी। इज़ के साथ दूसरा जो हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस का है वो आर, पास्ट टेंस में वर, और बीन भी प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर तीनों में यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है एम प्रेजेंट टेंस में, और बीइंग
ये प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर तीनों में यूज़ किया जाता है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं टू बी के अंदर देर आर 8 वर्ब्स विच वी आर गोइंग टू यूज इन दिस एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। आप ऐसे समझ लीजिए कि इनके बिना पैसिव वॉइस नहीं बन सकता है। सो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड compulsory. Now we are going to see the rules for active to passive voice. यहाँ हम लोग स्टूडेंट्स ये देखने जा रहे हैं कि एक्टिव से पैसिव वॉइस में कन्वर्जन कैसे करेंगे। कोई भी सेंटेंस अगर एक्टिव वॉइस में दिया गया है तो हम उसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट कैसे करेंगे, या फिर अगर कोई सेंटेंस पैसिव वॉइस में दिया गया तो उसको एक्टिव वॉइस में कन्वर्ट कैसे करेंगे। अगर आपने एक्टिव से पैसिव में कन्वर्जन करना सीख लिया तो उसको आप रिवर्ट कर देंगे, पैसिव से एक्टिव में कन्वर्जन हो जाएगा। तो लेट्स सी फर्स्ट रूल। आप स्टूडेंट्स ये जानिए कि देयर आर 5 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस वी हैव ऑलरेडी स्टडीड इन प्रीवियस चैप्टर्स। First of all, we are going to study about active to passive voice assertive sentence। इसके बाद आप इंट्रोगेटिव और इम्परेटिव सेंटेंस पर देखेंगे। तो असर्टिव सेंटेंस के लिए रूल नंबर 1 है sentences having transitive verbs only can be changed from active to passive voice। स्टूडेंट्स, ऐसा कोई भी सेंटेंस जिसमें ट्रांजिटिव वर्ब होगा उसको ही हम पैसिव वॉइस में चेंज कर सकते हैं। मीन्स अगर ट्रांजिटिव वर्ब नहीं है तो वो सेंटेंस पैसिव वॉइस में कन्वर्ट नहीं होगा। व्हाट इज ट्रांजिटिव वर्ब? ट्रांजिटिव वर्ब मीन्स द वर्ब हैविंग इट्स ऑब्जेक्ट। ट्रांजिटिव वर्ब का मतलब होता है एक ऐसा वर्ब जिसका एक ऑब्जेक्ट होता है। इसका मतलब ये हुआ कि आप ऐसे सेंटेंसेस को एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट कर पाएंगे जिसमें ऑब्जेक्ट होगा और ऑब्जेक्ट वर्ब का होगा। ध्यान देने वाली बात है, वर्ब्स हैविंग इट्स ऑब्जेक्ट आर नोन एज ट्रांजिटिव वर्ब। एंड फॉर एग्जाम्पल, आई हैव कट माई प्लांट। आई हैव कट माई प्लांट में क्या कंपोनेंट्स हैं सेंटेंस के वो देखते हैं। आई तो सब्जेक्ट हो गया, हैव उसका हेल्पिंग वर्ब है और कट मेन वर्ब है, माई प्लांट ऑब्जेक्ट है। तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ इस सेंटेंस में वर्ब तो है, वर्ब का ऑब्जेक्ट भी है। जब वर्ब का ऑब्जेक्ट है तो ये जो कट है इसको हम ट्रांजिटिव वर्ब कहेंगे। इट मीन्स कि इस सेंटेंस को हम पैसिव वॉइस में कन्वर्ट कर सकते हैं। सेकेंड रूल इज पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ वर्ब, दैट इज थर्ड फॉर्म ऑफ मेन वर्ब इज यूज्ड इन ऑल टेंसेस इन पैसिव वॉइस। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि पैसिव वॉइस में टेंस चाहे कोई भी हो, हम हमेशा वर्ब के थर्ड फॉर्म यानी कि पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज करते हैं। नाउ नेक्स्ट रूल इज जनरली बाय प्रीपोजिशन इज यूज्ड बिफोर ऑब्जेक्ट इन पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस में क्या करते हैं हम, जिस प्रपोजिशन को यूज करते हैं वो ऑब्जेक्ट के पहले यूज करते हैं और वह है बाय। लेकिन ऐसा नहीं कि हम पूरे पैसिव वॉइस में बाय प्रपोजिशन का ही यूज करते हैं। कुछ स्पेसिफिक वर्ब्स हैं जिनको आपको ध्यान में रखना है। अगर ऐसे वर्ब्स आपके एक्टिव वॉइस में आए हैं तो पैसिव वॉइस में जो प्रपोजिशन यूज होगा वो क्या होगा। सबसे पहले देखिए, अगर आपके एक्टिव वॉइस में वर्ब जैसे कि सरप्राइज्ड, एस्टोनिश्ड, डिसअपॉइंटेड, डिस्ट्रेस्ड, डिसप्लीज्ड और अलार्म्ड ऐसे वर्ब्स आए हैं तो आप एट प्रपोजिशन का यूज करेंगे।
while on the other hand preposition to is used with verbs like known and obliged. मतलब अगर एक्टिव वॉइस में known या फिर obliged जैसा वर्ब आया हुआ है तो इसके साथ हम टू प्रपोजिशन का यूज करते हैं. प्रपोजिशन with is used with the verbs such as pleased, satisfied, disgusted, charmed, thronged, lined. अगर ऐसे वर्ब्स आते हैं जैसे प्लीज्ड है, सेटिस्फाइड है, डिसगस्टेड, चार्म्ड, थ्रोन्स्ड, लाइंड, तो इसके साथ हम विथ प्रपोजिशन को यूज करते हैं. और फाइनली इन प्रपोजिशन की अगर हम बात करें, अगर एक्टिव वॉइस में कंटेंट और इंटरेस्टेड जैसा वर्ब आया है तो हम इन प्रपोजिशन का यूज करेंगे. जनरली बाय प्रपोजिशन का यूज होता है ऑब्जेक्ट से पहले, लेकिन अगर वर्ब्स जैसा इस लिस्ट में मैंने आपको बताया इस तरीके के वर्ब्स हैं तो बाय प्रपोजिशन की जगह पर एट, टू, विथ या इन में से कोई प्रपोजिशन जो सुटेबल है वो आएगा. नेक्स्ट रूल इज द प्लेसेस ऑफ subject and object of active voice are interchanged in passive voice. That is, object of active voice becomes subject of passive voice. Important rule है ये स्टूडेंट्स. आप जब सेंटेंस को स्टडी करेंगे, एक्टिव वॉइस देखेंगे तो एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट है इनका प्लेस इंटरचेंज हो जाता है. मीन्स जहाँ पर सब्जेक्ट एक्टिव वॉइस में होता है, पैसिव वॉइस में वहीं पर एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट आ जाता है और जहाँ सब्जेक्ट था वहाँ पर ऑब्जेक्ट आ जाता है. मतलब आपको सबसे पहले सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करना होगा एक्टिव वॉइस में. इसके बाद जब आप पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं तो ऑब्जेक्ट को पहले रखेंगे और सब्जेक्ट को बाद में रखेंगे. मतलब ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की रूप में यूज़ होगा और सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के रूप में यूज़ होगा. इसको जब आप एग्जाम्पल देखेंगे तो और ज़्यादा क्लियर होगा, लेकिन सबसे पहले हम लोग सारे रूल्स को डिस्कस करेंगे. एग्जाम्पल्स आपको भरपूर प्रैक्टिस के लिए मिलेगा. तो लेट्स सी व्हाट इज़ रूल नंबर 6. टू बी इज़ यूज्ड इन द फॉलोइंग वेज. अभी आपने थोड़ी देर पहले देखा टू बी जिसमें 8 हेल्पिंग वर्ब्स थे, उनको हम किस तरीके से पैसिव वॉइस में यूज़ करते हैं, किस टेंस में किसको यूज़ करते हैं, तो उसका एक चार्ट आपके सामने है. वो चार्ट हम देखते हैं. सबसे पहले आप देखिए 3 कॉलम में ये चार्ट डिवाइड है. कॉलम नंबर 1 टेंस, कॉलम नंबर 2 एक्टिव वॉइस, व्हाट इज़ द हेल्पिंग वर्ब इन एक्टिव वॉइस, एंड कॉलम नंबर 3 what helping verb we will use in passive voice. तो स्टूडेंट्स सबसे पहले देखते हैं टेंस कौन से हैं. टेंस में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस. प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जनरली आप अगर हेल्पिंग वर्ब देखेंगे तो वो होता है डू या फिर डज. ये एक्टिव वॉइस का हेल्पिंग वर्ब है. लेकिन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस अगर हम पैसिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब की बात करते हैं तो वो है इज, आर और एम. मीन्स पैसिव वॉइस में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का हेल्पिंग वर्ब इज, आर, एम होता है, जबकि एक्टिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब होता है डू या फिर डज. प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, एक्टिव वॉइस का हेल्पिंग वर्ब इज, आर, एम है. But if we talk about passive voice, what is helping verb in passive voice? Is being, are being, and am being. Now let's talk about present perfect tense. The helping verb in present perfect tense is has and have. But if we talk about helping verb in पैसिव वॉइस तो
the helping verb in present perfect tense is has been and have been. Now let's move towards past indefinite tense. Past indefinite tense एक्टिव वॉइस हेल्पिंग वर्ब क्या है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस एक्टिव वॉइस हेल्पिंग वर्ब होता है डिड, लेकिन अगर हम पैसिव वॉइस की बात करें तो इट इज वॉज और वर. नाउ पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस. पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस एक्टिव वॉइस हेल्पिंग वर्ब क्या होता है? तो ये है वॉज और वर. लेकिन अगर हम पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के पैसिव वॉइस हेल्पिंग वर्ब को देखें तो इट इज वॉज बीइंग एंड वर बीइंग. पास्ट परफेक्ट टेंस active voice helping verb is had, but if we see the helping verb of past perfect tense in passive voice, so it is had been. Let's move towards future indefinite tense. Future indefinite tense helping verb in active voice is will and shall. लेकिन अगर हम पैसिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब की बात करते हैं तो वो होता है विल बी और शैल बी. फ्यूचर परफेक्ट टेंस एक्टिव वॉइस हेल्पिंग वर्ब होता है विल हैव और शैल हैव. और फ्यूचर परफेक्ट पैसिव वॉइस यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब क्या होगा? विल हैव बीन और शैल हैव बीन. तो माय डियर स्टूडेंट्स, आपने ये देखा है. इस चार्ट को आपको बहुत ही अच्छे ढंग से समझना है कि एक्टिव वॉइस में क्या हेल्पिंग वर्ब होता है और उसी टेंस का पैसिव वॉइस में क्या हेल्पिंग वर्ब होता है. इस चार्ट को आप बार बार प्रैक्टिस करके मेमोराइज कर लें. जो ध्यान देने वाली बात है, जैसे आप जानते हैं बेसिकली 3 टेंस होता है, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, और उसको 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है. मीन्स 3 मल्टीप्लाइड बाई 4 इक्वल टू 12 टेंस वी स्टडी इन इंग्लिश ग्रामर. बट एक्टिव से पैसिव में जब हम कन्वर्जन करते हैं तो ओनली 8 टेंसेस आर कन्वर्टेड फ्रॉम एक्टिव टू पैसिव. और जो 4 नहीं कन्वर्ट होते हैं एक्टिव से पैसिव में, उनके नाम यहाँ पर दिए गए हैं. प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस एंड फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस. These tenses are not changed into passive voice. Now next rule, use of the chart of personal pronoun. पर्सनल प्रोनाउन का जो चार्ट है ये आपके सामने आ रहा है. इसको कैसे यूज़ करते हैं ये आपको ध्यान में रखना है. ये चार्ट भी आपको मेमोराइज करना है, क्योंकि जब भी आप एक्टिव से पैसिव में कन्वर्जन करेंगे तो इसका हमेशा आपको ज़रूरत पड़ेगा. तो सबसे पहले देखते हैं पर्सनल प्रोनाउन का जो चार्ट है. ये 4 कॉलम में डिवाइड है. केस एंड पर्सन. केस में सब्जेक्टिव केस है, ऑब्जेक्टिव केस और पॉजेसिव केस. देयर आर 3 टाइप्स ऑफ केसेस: सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस एंड पॉजेसिव केस. पर्सन, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ पर्सन्स: फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन. फर्स्ट पर्सन में कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं? फर्स्ट पर्सन में सब्जेक्ट आता है आई एंड वी. अगर हम जेंडर की बात करें, आई इज कॉमन जेंडर, वी इज ऑल्सो कॉमन जेंडर. मीन्स फर्स्ट पर्सन में जो सब्जेक्टिव केस है वो आई और वी है और इनका जेंडर है कॉमन. अगर हम आई के ऑब्जेक्ट की बात करें तो आई का ऑब्जेक्ट होता है मी. मतलब जब आई सब्जेक्टिव फॉर्म में है तो आई तो है ही, लेकिन इसी सब्जेक्टिव केस आई को जब हम ऑब्जेक्टिव केस में कन्वर्ट करेंगे तो वो हो जाएगा मी. और अगर पॉजेसिव केस की बात करें तो पॉजेसिव केस आई का होता है माई और माइन.
वाइल वी का सब्जेक्टिव केस है, वी का ऑब्जेक्टिव केस होता है अस, और पॉजिटिव केस होता है और आवर्स। आई कॉमन जेंडर होने के साथ साथ सिंगुलर नंबर है, वी कॉमन जेंडर होने के साथ साथ प्लूरल नंबर है। इसको थोड़ा हमें ध्यान में रखना होगा। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स सेकेंड पर्सन। सेकेंड पर्सन में सब्जेक्टिव केस यू होता है, यू भी कॉमन जेंडर है, ऑब्जेक्टिव केस भी यू होता है, और पॉजिटिव केस योर और योर्स ये होता है। तो आप देख सकते हैं सेकेंड पर्सन में सिर्फ हम एक सब्जेक्ट को पाते हैं और वो है यू। नाउ थर्ड पर्सन में हम 4 कैटेगरी के सब्जेक्ट को देख सकते हैं। सब्जेक्टिव केस में सबसे पहले आता है ही है मैस्कुलिन जेंडर, इसका ऑब्जेक्टिव केस होता है हिम, सिंगुलर नंबर है ही और हिम, और इसका पॉजिटिव केस होता है हिज, ही हिम हिज। थर्ड पर्सन जो सेकंड कैटेगरी का सब्जेक्टिव केस है दैट इज शी फेमिनिन जेंडर है, सिंगुलर नंबर है, शी का ऑब्जेक्टिव केस हर होगा और पॉजिटिव केस हर और हर्स होगा। इट थर्ड कैटेगरी का सब्जेक्ट है, ये न्यूटर जेंडर होता है, सिंगुलर नंबर होता है, और इसका ऑब्जेक्टिव केस भी इट होता है, पॉजिटिव केस इट्स होता है। नाउ नेक्स्ट इज सब्जेक्टिव केस ऑफ थर्ड पर्सन इज दे इज अ कॉमन जेंडर, प्लूरल नंबर। तो दे कॉमन जेंडर प्लूरल नंबर होने के साथ साथ हम जब इसके ऑब्जेक्टिव केस को देखेंगे तो ऑब्जेक्टिव केस होता है देम और पॉजिटिव केस होता है देयर और देयर्स। तो ये आपका चार्ट है, इस चार्ट को हमेशा आपको ध्यान में रखना होगा, ये मेमोराइज करना होगा, तभी आप प्रॉपर वे में कन्वर्जन कर पाएंगे। जैसे आपने पिछले रूल्स में देखा है कि हम सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह पर रख देते हैं, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह पर रख देते हैं। तो ये ऑब्जेक्ट क्या है, उसका सब्जेक्ट क्या है वो आपके सामने है, या सब्जेक्ट क्या है उसका ऑब्जेक्ट क्या होगा वो इस चार्ट के माध्यम से आप समझ सकते हैं। तो यू मस्ट अंडरस्टैंड what is subjective case, what is objective case, and what is possessive case, and this you can understand only through this chart which is known as personal pronoun chart. Now it's time for practice for changing active voice into passive voice। प्रॉपर प्रैक्टिस की ज़रूरत है, आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको समझ में आएगा। तो लेट्स सी एक्सरसाइज नंबर 1 यहाँ पर कैसे हम करेंगे। इंस्ट्रक्शन दिया गया, आइडेंटिफाई द ट्रांजिटिव वर्ब एंड चेंज द सेंटेंसेस फ्रॉम एक्टिव टू पैसिव वॉइस। सबसे पहले तो आपको ट्रांजिटिव वर्ब को आइडेंटिफाई करना है, इसके बाद आपको एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट करना है। फर्स्ट सेंटेंसेस, आई प्ले फुटबॉल इन द ग्राउंड। यहाँ अगर हम एनालाइज करें, आंसर दें इसका, क्योंकि यहाँ पर आपको ट्रांजिटिव वर्ब आइडेंटिफाई करना है, इसके बाद सेंटेंस को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है। प्ले क्या है, प्ले इज मेन वर्ब, उसके पहले आई आपने देखा है, आई इज सब्जेक्ट, प्ले इज मेन वर्ब। नाउ यू हैव टू आस्क क्वेश्चन फ्रॉम योर वर्ब टू फाइंड आउट द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को पता करना है तो सबसे पहले आपको अपने मेन वर्ब से क्वेश्चन करना पड़ेगा। क्वेश्चन है व्हाट, प्ले व्हाट। लेट्स सी व्हाट इज द आंसर। आंसर ऑफ व्हाट इज फुटबॉल। तो फुटबॉल इज द ऑब्जेक्ट,
So football is object of the verb play, and thus play is a transitive verb. आई होप स्टूडेंट्स आपको समझ में आ रहा होगा। ट्रांजिटिव वर्ब को फाइंड आउट करने का तरीका क्या है, आपको सबसे पहले अपना वर्ब आइडेंटिफाई करना पड़ता है। वर्ब आइडेंटिफाई करने के बाद उससे आपको क्वेश्चन करना है, व्हाट या फिर हु, हुम, ऐसे क्वेश्चंस आप करेंगे। अगर उस क्वेश्चन का रिप्लाई आपको दिए गए सेंटेंस में मिल जाता है, इट मीन्स that reply is the object of verb, and it also means the verb is having its object, and that is transitive verb. अगर हम इसके पैसिव वॉइस में कन्वर्जन करते हैं इस दिए गए सेंटेंस का, तो कैसे होगा? पहले सेंटेंस को हम देखते हैं एक्टिव वॉइस में जो दिया है, आई प्ले फुटबॉल इन द ग्राउंड। पहचानेंगे इसमें कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं। आई इज सब्जेक्ट, play is main verb, football is object and remaining part is complement. आपने रूल में स्टडी किया है कि हम सब्जेक्ट की जगह पर ऑब्जेक्ट को लाते हैं और ऑब्जेक्ट की जगह पर सब्जेक्ट को लाते हैं। आई सब्जेक्ट है और फुटबॉल ऑब्जेक्ट है, तो फुटबॉल को ऑब्जेक्ट, जो फुटबॉल ऑब्जेक्ट है उसको सब्जेक्ट आई की जगह पर रख देंगे, तो और आई जो कि सब्जेक्ट है एक्टिव वॉइस का, उसको फुटबॉल की जगह पे रखेंगे, लेकिन ऑब्जेक्टिव केस में रखेंगे। अभी आपने पिछले चार्ट में देखा है कि आई का ऑब्जेक्टिव केस मी होता है। तो चलिए इंटरचेंज करते हैं प्लेस को। फुटबॉल इज प्लेड बाय मी इन द ग्राउंड। इन द ग्राउंड कॉम्प्लीमेंट है, वो जहाँ है वहीं है। आपने सिर्फ देखा है फुटबॉल को हमने आई की जगह पर रखा है और आई को फुटबॉल की जगह पर रखा है। रूल में आपने देखा है कि हमेशा हम पैसिव वॉइस में वर्ब के थर्ड फॉर्म को यानी कि पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म को यूज़ करते हैं। एक बार फिर से देख लीजिए, एक्टिव वॉइस में है आई प्ले फुटबॉल इन द ग्राउंड, और पैसिव वॉइस में क्या है, फुटबॉल इज प्लेड बाय मी इन द ग्राउंड। अगर हम टेंस की बात करें तो टेंस इस एक्टिव वॉइस का टेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। पैसिव वॉइस में भी वही टेंस है, लेकिन जैसे आपने चार्ट में देखा था, एक्टिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब कुछ और होता है और पैसिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब कुछ और हो जाता है। अभी यहाँ हम दूसरा एग्जाम्पल देखने जा रहे हैं। द चाइल्ड इज इग्नोरिंग मी। यहाँ इग्नोरिंग वर्ब है और मी ऑब्जेक्ट है, और अगर हम सब्जेक्ट की बात करते हैं तो सब्जेक्ट है द चाइल्ड। मतलब इस सेंटेंस में आपको ये देखना है एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में कि सब्जेक्ट क्या है, उसका वर्ब क्या है और ऑब्जेक्ट क्या है। क्योंकि आपने पहले ही सुना है कि अगर ट्रांजिटिव वर्ब होगा एक्टिव वॉइस में तभी हम उसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये पहचानना बहुत ज़रूरी है, ट्रांजिटिव वर्ब दिया है या फिर नहीं दिया। तो द चाइल्ड इज़ इग्नोरिंग मी, ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का एक सेंटेंस है। यहाँ पर आपने देख लिया वर्ब इग्नोरिंग है, ऑब्जेक्ट मी है, उसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे। आपने पहले भी सुन लिया है, देख लिया है कि जहाँ पर सब्जेक्ट था वहाँ ऑब्जेक्ट को लेकर चले जाएंगे, जहाँ ऑब्जेक्ट दिख रहा है वहाँ सब्जेक्ट को लेकर आएंगे। तो ऑब्जेक्ट है मी का सब्जेक्टिव केस आप देखते हैं तो मिलेगा आपको आई, यानी कि आई को द चाइल्ड की जगह पर रखेंगे। आई के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या यूज़ होगा, आई के साथ इज तो होगा नहीं, आई के साथ हेल्पिंग वर्ब यूज़ होता है एम, मीन्स आई एम। ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस है, हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस पैसिव वॉइस में होता है, इज बीइंग, एम बीइंग, आर बीइंग। तो एम लगा है तो एम बीइंग हो जाएगा, आई एम बीइंग। वर्ब के थर्ड फॉर्म को यूज़ करते हैं, वर्ब है आपका इग्नोरिंग, तो इसका थर्ड फॉर्म हो जाएगा इग्नोर्ड, और जो सब्जेक्ट है ऑब्जेक्ट की जगह पर जाएगा। ऑब्जेक्ट की जगह पर जाने से पहले हमें एक प्रपोजिशन यूज़ करना पड़ता है, जनरली बाय, तो वो हमने लगा दिया है। और इस तरीके से पूरा जो सेंटेंस पैसिव वॉइस में बन के आ रहा है वो है आई एम बीइंग
ignored by the child. Now let's see third example. China has deceived us. यहाँ एक बार फिर आपको पहचानना होगा what is subject, what is verb and what is object. China is subject, deceived is verb and us is object. तो अभी जिस तरीके से आपको समझाया गया उसके बेस पर आपको इसको कन्वर्ट करना है पैसिव वॉइस में. अस का सब्जेक्ट होगा वी, वो आप शुरू में ला चुके हैं. वी के साथ हेल्पिंग वर्ब हैव बीन होगा क्योंकि ये एक्टिव वॉइस का सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है. और जब भी परफेक्ट टेंस का सेंटेंस होता है, चाहे वो प्रेजेंट का हो, पास्ट का हो, आपको बीन का यूज़ करना है. फ्यूचर का भी परफेक्ट है तो बीन का यूज़ करना है. तो वी हैव बीन डिसीव्ड बाय चाइना. नेक्स्ट एग्जाम्पल इज COVID-19 claimed millions of lives. ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है. तो यहाँ पर आप इसका पैसिव वॉइस देखेंगे. आपको पहचान लेना है सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट को और उसके अकॉर्डिंग आप चेंज करेंगे. मिलियंस ऑफ लाइव्स वर क्लेम्ड बाय COVID-19. ये इसका पैसिव वॉइस में कन्वर्जन है. नाउ नंबर 5, students were not attending their classes. यहाँ पैसिव वॉइस हम देखते हैं. ये जो अटेंडिंग देयर क्लासेस है ये ऑब्जेक्ट है, तो इसी को पहले लाएंगे. कैसे करेंगे? द स्टूडेंट्स वर नॉट अटेंडिंग देयर क्लासेस. पैसिव वॉइस होगा देयर क्लासेस वर नॉट बीइंग अटेंडेड बाय स्टूडेंट्स. सेंटेंस में सब्जेक्ट स्टूडेंट्स है, अटेंडिंग उसका मेन वर्ब है और देयर क्लासेस ऑब्जेक्ट है. तो देयर क्लासेस जो ऑब्जेक्ट है उसी को हम पहले लाए यहाँ पर. देयर क्लासेस वर नॉट बीइंग अटेंडेड बाय स्टूडेंट्स. अगर टेंस की बात करते हैं, इस एग्जाम्पल नंबर 5 वाला टेंस है पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस. टेंस इंपॉर्टेंट है, आपको पहचानना ही होगा. अगर आपने टेंस पहचानने में चूक कर दिया तो आपका कन्वर्जन भी रॉन्ग हो जाएगा. अभी आपके सामने ये जो सेंटेंस आया एक्टिव वॉइस नंबर 6, अमर हैड शिप्ड माय पार्सल यस्टरडे. पैसिव वॉइस माय पार्सल हैड बीन शिफ्टेड, सॉरी, my parcel had been shipped yesterday by Amar. Dear students, I hope you have understood whatever I taught you in this first part of active and passive voice. I hope you will have no doubt, but if you are having any kind of doubt, feel free, give comments in the comment box so that I may help you once again. It's my once again request to you, always watch the video from beginning till end so that each and every point you may cover and understand properly. I'm always to help you. I'm always ready to help you. Please like and share this channel and subscribe this channel once again. Thank you.